Hello everyone. Today we will start our new topic, biomolecules. What is biomolecules? So molecule which are present in any living organism is called the biomolecule. नहीं तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको molecule. Living organism में है करके हम लोगों ने क्या word use किया? That is called biomolecule. And before going to the biomolecule, you should understand one thing. All living organism they are made up of the biomolecule. Variety of elements you can say. Living organism they are made up of elements and compounds. So living organism they are made up of elements and compound, and which are found in their like cytoplasm, or you can say protoplasm. Any living organism they are made up of cell, tissue. This cell is having cytoplasm or protoplasm. In the cytoplasm and protoplasm, there are elements and compounds. So all compounds which are present in living organism, these all compounds are called biomolecule. So you already know that molecules or you can say elements, whatever the molecule hai ya elements hai, these molecules and elements they are made up of atoms, and these atoms they you already know the structure, that is the atom is having nucleus and some electron around it. So that is not our part today. We are not going to see the structure. So molecule and elements they are made up of the atoms, and along with the use of that particular molecule you can make the biomolecule. You can make the biomolecule, right? So and this all molecules are present in living organism, and that is why these molecules are called biomolecule. Okay. Now whatever the molecules and whatever the elements which we are going to study today, they are present in cell. कहाँ रहते ये सारे? Cell में रहते. And we call that cellular pool, right? जैसे स्विमिंग पूल रहता है ना, उसमें सब पानी और सारी चीजें रहेंगी, वैसे सेल का जो पूल है which is made up of fluid which is like cytoplasm, उस fluid में जितने भी elements और molecule है, okay, that whole are called cellular pool, and in that cellular pool what are the molecules are there, that's we are going to study. So all the elements and molecule which are present in the cell, they are called cellular pool. Okay, and now we will start the biomolecule. Biomolecule grossly they are of two type. Okay, grossly biomolecule they are of two type. One is called micro biomolecule and another is macrobiomolecule. This is very easy subject, not subject, chapter. Okay, lot of people they thought कि biomolecule बहुत tough है करके. No, it's not. It's very easy. Question बहुत it's from the लाइन टू लाइन वाले रहेंगे, इसमें ज्यादा थिंकिंग की जरूरत नहीं है, राइट? जैसे बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स में यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ थिंकिंग. बायोमोलिक्यूल लगने को या पढ़ने को हमें थोड़ा हार्ड लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन, राइट? यूजुअली इट इज फाउंड दैट कि कोई इसमें गलती नहीं करता है, राइट? सो इट इज ए स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का अचानक से चेंज नहीं हो सकता अनलेस एंड अंटिल दैट मॉलिक्यूल कंबाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट? सो बायोमोलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप, माइक्रो एंड मैक्रोबायोमोलिक्यूल. अब ये माइक्रो और मैक्रो कैसे नाम दे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. How will you classify the biomolecule? They will classify them micromolecule and macrobiomolecule on the basis of molecular weight. Now first we will see micromolecule. मैं कभी कभी माइक्रो बायो बोलूंगा या कभी कभी माइक्रोमोलिक्यूल. यू शुड अंडरस्टैंड कि ये बायोलॉजी का ही चालू है, तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल. सो माइक्रो बायोमोलिक्यूल their molecular weight, we will measure the molecular weight of biomolecule in terms of unit Dalton, DALTON. So
the molecular weight of microbiomolecule, it is 18 to 800 Dalton. It is how many? It is 18 to 800 Dalton. और छोटे हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल रहेगा. इट्स वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड सोल्यूबल. सोल्यूबिलिटी अच्छा रहेगा इसका. इट इज द हाई सोल्यूबिलिटी इन सेल्यूलर पूल है तो सेल्यूलर फ्लूइड में, इंट्रा सेल्यूलर पूल में, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड में. सो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ये सारे सेल में ही रहेंगे तो इनका सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छा रहता है, राइट. अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जो हमको चाहिए, राइट, और जो हमारे सेल में चाहिए और जो सिंपल स्ट्रक्चर है. सो एग्जांपल मोनोसैकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो, जब आप कार्बोहाइड्रेट लोगे दैट इज अ बंडल ऑफ चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड. जो चेन है उसको आप कट करते करते जाओगे तो पॉली का फिर ऑलिगो बनेगा, ऑलिगो का फिर ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड और सबसे आखिर में मोनोसैकेराइड. अब उस मोनोसैकेराइड को जब आप तोड़ोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा. व्हाट इज दैट कॉल्ड? उससे भी छोटा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा. सो मोनोसैकेराइड इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ योर विच वन? दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. तो ये क्या आ गया? सबसे छोटा है तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल. अगर मैक्रो बायोमोलिक्यूल देखोगे तो इसी का जो बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड. प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? अमीनो एसिड. सो अमीनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड और चेन एंड दे फॉर्म प्रोटीन. ओके, मोनोसैकेराइड हो गया, अमीनो एसिड हो गए, राइट. लिपिड भी इसमें आएंगे. अब लिपिड कैसे आते हैं हम लोग बाद में देखते हैं. ये आपको लिपिड याद रखना है. ओके, लिपिड ऑल्सो कम अंडर द, ओके, बिकॉज लिपिड कैन बी डिवाइडेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. लेकिन मैंने यहाँ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं, यहाँ क्या डायरेक्टली क्या है? लिपिड. मिनरल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, राइट. दे ऑल्सो कम अंडर द नाइट्रोजन बेसिस हो गया आपके, एडेनाइन, ग्वाइनाइन, साइटोसिन, थायमाइन, ये सारे क्या हो गए? दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन बेसिस हो गए, राइट. सो नाइट्रोजन बेस, pentose sugar and the phosphate, they together form one unit of nucleotide. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? छोटे मॉलिक्यूल देख रहे हैं. तो हम लोग नाइट्रोजन बेसिस को भी यूज कर सकते हैं एज अ यूज, यानी हम लोग उसको बोल सकते हैं माइक्रो बायो मॉलिक्यूल. सबसे इंपॉर्टेंट इनका प्रैक्टिस दैट इज कॉल्ड, यू कैन से प्रॉपर्टी है, दे आर एसिड सोल्यूबल. दे आर acid soluble. So all microbiomolecule they should be acid soluble. जहां एमसीक्यू आने वाला है वो है लिपिड. लिपिड यानी आपका फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ऑयल हो गया. और आपको पता है ऑयल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. जो वाटर सोल्यूबल नहीं है वो एसिड सोल्यूबल रहेंगे क्या? नो, इट्स नॉट लाइक. तो सारे माइक्रोबायोमोलिक्यूल आपके कैसे? एसिड सोल्यूबल एक्सेप्ट लिपिड. फिर लिपिड को इसने क्यों डाला हम लोग बाद में देखेंगे, राइट. फिर भी आपको याद रखना है बायोमोलिक्यूल में मोनोसैकेराइड आ गया, अमीनो एसिड, लिपिड. तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, तीनों के छोटे छोटे मॉलिक्यूल आ गए, मिनरल्स आ गए और नाइट्रोजन बेसिस आ गए, राइट. ऑल दे शुड बी एसिड सोल्यूबल. एक्सेप्ट कौन सा है एसिड सोल्यूबल, कौन सा नहीं है? लिपिड जो है एसिड सोल्यूबल नहीं है, फिर भी वो माइक्रो मॉलिक्यूल है. नाउ एलिमेंट्स, अब ये हो गया आपके माइक्रोबायोमोलिक्यूल. यही अगर मैक्रो बोलेंगे हम लोग तो बड़े वाले कौन से? मोनोसैकेराइड का बड़ा हो गया कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड का हो गया प्रोटीन, फैट. ओके, फिर फैट का क्या करना है? लिपिड तो ऑलरेडी इधर रख दिया है, ठीक है. उसके बाद क्या आ जाएगा आपके? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए या आरएनए, उसको तोड़ के यहाँ नाइट्रोजन बेसिस. तो ये हो गया आपके मैक्रो. एंड दे शुड बी एसिड इनसोल्यूबल. दे शुड बी एसिड इनसोल्यूबल रहने वाले ये सारे, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं बाद में. अभी हम लोगों ने क्या देखा है? सिर्फ माइक्रो बायो मॉलिक्यूल और उसके एग्जाम्पल. अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स है? देयर आर लाइक 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स देखते हैं अभी कौन से एलिमेंट है आपको
इस चैप्टर में सिर्फ याद रखने हैं आपको elements. So in this chapter there are 25 number of elements which is very important. 25 नंबर वाले 25 एलिमेंट है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सबसे ज्यादा आपको लगते हैं वो है मेजर एलिमेंट, जो कम अमाउंट में लगते हैं वो माइनर एलिमेंट, और जो बहुत वेरी ट्रेस अमाउंट में लगेंगे उसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट. सो देखो आप कोई भी फॉर्मूला देखो, आप किसी भी मॉलिक्यूल का देखो, कार्बोहाइड्रेट का देखो, प्रोटीन का देखो, फैट का देखो, हर जगह आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिखता ही है. दैट इज व्हाई आई सेड दीज आर मेजर एलिमेंट. यानी आपकी ये जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में हम लोगों ने बोला कि ये सबको हम लोग बोलते हैं सेलुलर पूल. इस सेलुलर पूल में माइक्रोबायोमोलिक्यूल है, मैक्रोबायोमोलिक्यूल है, लेकिन ये सारे जिससे बनते हैं एलिमेंट्स है 99% सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहता ही है. राइट, ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमीनो एसिड में भी है, हर जगह आपको ये 3-4 तो मिलते ही है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम मेजर एलिमेंट. ये हो गया आपके मेजर. माइनर यानी मेजर एलिमेंट ऑफ आपके सेलुलर फूल. तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 95 to 96% ये रहते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. माइनर कौन से? द माइनर एलिमेंट जो है आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, ओके, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया. Almost 8 to 9, like they are like 4 to 5%. They are your which one? That is called minor element. Okay, sodium, potassium. Okay, that is called chloride, calcium, magnesium, sulfur, iron, phosphorus भी आएगा इसमें. Right, you can say also the phosphorus. Okay, iodine, all this comes under your which one? That is called minor element. Right, sodium, potassium, calcium, chlorine, magnesium, sulfur, ferrous, iodine, phosphorus, they are your which one? Minor element. बहुत कम इसमें लगते हैं. राइट, अब जो बहुत लगते ही नहीं है, कभी कभी आपको दिखेंगे, वो है जिंक. जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मैंगनीज बोलते, मॉलिब्डेनम. ओके, ये सारे जो मेटल जैसे आपको लगते, सिलिकॉन, ओके, देन एल्यूमिनियम, दैट इन वैलेंडियम, बोरॉन. ओके, सो बोरॉन हो गया. राइट, सो फ्लोराइड. सो ये सारे 12 एलिमेंट है वो आपके ट्रेस एलिमेंट रहते. 4 है जो आपके मेजर एलिमेंट है, और जो 9 है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस एंड आयोडीन, ये हो गया आपके माइनर एलिमेंट. सो ट्रेस को ट्रेस इसलिए बोलते कि लेस देन 1% रहते हैं. सो जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, वैलेडियम, बोरॉन हो गया. राइट, सो बोरॉन हो गया. सो ऑल दिस, ओके, सो दे आर ट्रेस एलिमेंट. सो बहुत कम अमाउंट में आपको लगते हैं. आपको ये रटना नहीं है कि कौन से ट्रेस एलिमेंट है, कौन से माइनर एलिमेंट है, कौन से मेजर. आपको सिर्फ ये याद रखना है. सो मेजर आर, ये आपको याद रखने की आपको हर फार्मूला में ये 4 चीजें मिलके है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. राइट, सो दीज आर योर मेजर एलिमेंट. मेजर माइनर याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बचे हुए सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे? आपके ट्रेस में. सो मेजर कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. 95 to 96% सेलुलर पूल में रहते. माइनर कौन से आपके? सोडियम, पोटेशियम. राइट, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया. याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ओके, सल्फर, ferrous, iodine and phosphorus. Right, so these are your which one? They are called the minor element. और बचे हुए सारे आपको जो मेटल साउंड करते, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन,
ओके, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, वैलेडियम, बोरॉन, ये सारे किस में आ जाएंगे आपके, दैट इज योर ईच वन दैट इज कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट में, राइट। नाउ दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट, ओके। नाउ ये तो आपके मेजर, और आपके ऑलमोस्ट जो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट करके एक वर्ड आता है आपको सेल्यूलर पूल में, प्रोटोप्लाज्म में, यानी ये भी आ जाएगा आपका और साइटोप्लाज्म ये भी आ जाएगा, तो टोटल हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में जैसे आपके न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस आएगा एंड सल्फर, तो ये चॉन और ये पीएस, फॉस्फोरस एंड सल्फर, क्योंकि यहाँ न्यूक्लिक एसिड है, उनको फॉस्फोरस चाहिए, सल्फर है, तो आपका ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पी है। चॉम्स आपको याद रखना है, दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। मेजर पूछेंगे तो चॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड प्रोटोप्लाज्मिक, ओके। सेल्यूलर पूल, ये सेल में का मैक्सिमम सेल्यूलर पूल कौन बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट अगर पूछेंगे तो 100% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। सो ये फॉस्फोरस और सल्फर जो ट्रेस है, माइनर एलिमेंट है, ये फिर किधर चले जाएंगे आपके प्रोटोप्लाज्मिक है। तो जैसे ही प्रोटोप्लाज्मिक वर्ड आएगा तो आपको पी और एस इसमें मेजर में ऐड करना पड़ेगा। सो मेजर आपका कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। माइनर कौन से आपके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ये आपके माइनर। इस माइनर में से फॉस्फोरस और सल्फर को उठा के कहां डालना है आपको, यहां अगर डालोगे तो ये कौन से हो गए आपके प्रोटोप्लाज्मिक, ओके। तो ये तो हो गए सारे माइक्रो एलिमेंट, ये हो गए हमारे, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो एलिमेंट। तो दीज आर योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो मॉलिक्यूल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड मैक्रो एलिमेंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द मैक्रो एलिमेंट। Macro element, right? Micro, the molecular weight is less than 800 Dalton. This is more than 800 Dalton. इनका molecular weight कितना है, more than 800 Dalton. They are complex, बड़ी size है, that's why they are complex. They are basically the complex and they have low solubility. जो बड़ी साइज है कम सोल्यूबल रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो अमीनो एसिड माइक्रो थे, अभी अमीनो एसिड का लार्जर मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, प्रोटीन हो गया, राइट। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर का, राइट, न्यूक्लिक एसिड, राइट। सो ये तुम्हारे ऑल मैक्रो एलिमेंट्स, ऑल दीज आर योर विच वन, दैट इज कॉल्ड मैक्रो एलिमेंट। नाउ इनका एनालिसिस किया था। So how will you perform the analysis? To perform the analysis, okay, we will take the help of pistol and mortar. We will take the help of pistol and the mortar. जो रहता है ना, दिखाते साइन रहता है, राइट। So this is like the sign everywhere you find फार्मेसी में, राइट, ये अंदर रहेगा। सो दिस इज बेसिकली पिस्टल एंड मॉर्टर, जहां पर हम लोग दवाइयां बनाते विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड पिस्टल एंड मॉर्टर, ओके। हियर वी विल टेक द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। पहले हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्लांट या कोई भी एनिमल टिश्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, राइट। एनीथिंग, इट इज ए लीफ और इट इज द सम मास, प्लांट और एनिमल टिश्यू आप लोगों ने इसमें डाल दिया, राइट। एंड देन यू ट्राई टू, दैट इज कॉल्ड मॉर्टर इट, ओके। फिर हम लोगों ने इसको मॉर्टर किया, राइट। मॉर्टर में पिस्टल की हेल्प से इसको हम लोगों ने क्या किया, क्रश किया, राइट। एंड देन वी ऐड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर उनको बारीक करके क्या ऐड किया हम लोगों ने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिड सोल्यूबल है कि नहीं देखना है ना हम लोगों को, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सो व्हेनेवर यू ऐड, पहले तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा मिक्सचर हो जाएगा इसके अंदर, राइट, क्योंकि आप लोगों ने इनको फाइन पार्टिकल में कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पिस्टल एंड मॉर्टर। फिर उसमें आपने लिक्विड डाला इन द फॉर्म ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्या फॉर्म हो गया, द फॉर्म थिंग इज नथिंग बट द
अ स्लरी, इसके बाद क्या फॉर्म हुआ, स्लरी फॉर्म हुई। आफ्टर एडिशन ऑफ ट्राइक्लोरो एसिडिक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्लरी। स्लरी जस्ट लाइक हम लोगों का कैसे एक करी में कैसा एक ये रहता है, राइट, दैट इज अ लिक्विड थिंग विच इज हैविंग सम ऑल द सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे ही इसको हम लोग स्लरी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस स्लरी कंटेन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड दिस द पार्टिकल ऑफ द एनी प्लांट और एनिमल टिश्यू। फिर हम लोगों ने ये जो स्लरी थी इसको फिल्टर किया, राइट। यहां पर आपने ये स्लरी डाल दी। इस स्लरी में आपको पता है मॉर्टर और पिस्टन की हेल्प से जो बना है वो टिश्यूज है, ओके। एंड देन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में वो डिसॉल्व है। नाउ व्हाट यू गेट हियर, यू विल गेट हियर, यहां जो नीचे आने वाला है ये है एसिड सोल्यूबल पूल, और यहां जो बचेगा इसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, राइट। सो एसिड सोल्यूबल, ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, राइट, ट्राइक्लोरो Cl3COOS, ये जो है वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस होंगे इनमें के वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और वो फिल्टर होके नीचे आ जाएंगे, राइट, वाटर सोल्यूबल और एसिड सोल्यूबल। और जो नहीं सोल्यूबल होंगे वो ऊपर रहेंगे, राइट। सो दिस इज, यू कैन सी हियर एसिड इनसोल्यूबल पूल विल बी हियर, जिसको हम लोग रेसिड्यूज बोल सकते हैं। रेसिड्यूज आर प्रेजेंट, आर नॉट रियली फिल्टर्ड, और जो एसिड सोल्यूबल पूल में जो आ गए, राइट, प्लांट और एनिमल के टिश्यू के जो पार्टिकल सोल्यूबल होके नीचे आ जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। क्या बोला उसको आपने, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, या सुपरनेटेंट भी बोल सकते हैं, सुपर नेटेंट, फिल्ट्रेट और सुपर नेटेंट। सो दिस एसिड सोल्यूबल पूल, इसमें कौन से मॉलिक्यूल फिल्टर हो सकते हैं जिनकी साइज कम हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। सो कौन से आए नीचे, जो एसिड सोल्यूबल पूल है ये वाला, इसमें जिनका साइज कम है, जो सोल्यूबल है वो आएंगे नीचे, दैट इज कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट आएंगे, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, लेस देन 800 डाल्टन। वही है ना माइक्रो मॉलिक्यूल। और आपके माइक्रो एलिमेंट है कौन से, जिनका जो एसिड सोल्यूबल है, जो साइज में कम है, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, वो नीचे आएंगे, राइट। कौन से आपको ऑलरेडी पता है, अमीनो एसिड है, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल हो गए आपके, राइट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है लाइक फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब नीचे आएंगे, राइट। ये तो एसिड सोल्यूबल पूल है। और एसिड इनसोल्यूबल पूल में जो बड़ी साइज वाले मॉलिक्यूल है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर दैट 800 to 10,000 डाल्टन है, वो ऊपर रहेंगे, राइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये ऊपर रहेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दे आर अबव। बट देयर इज वन प्रॉब्लम हियर, लिपिड। दिस प्रॉब्लम इज अबाउट लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 800 डाल्टन है। कितना है, लेस देन 800 डाल्टन है। अगर ये लेस देन 800 डाल्टन है तो किधर जाना चाहिए था, माइक्रो मॉलिक्यूल में जाना चाहिए था, राइट। बट लिपिड आपको यहां नहीं मिलेगा। लिपिड आपको कहां मिलेगा, यहां पर इनसोल्यूबल पूल में। यही क्वेश्चन है। लिपिड मॉलिक्यूल इन केस ऑफ एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड कहाँ मिलता है आपको, एसिड सोल्यूबल में मिलता है, एसिड इनसोल्यूबल में मिलता है। तो आपको क्या बोलना है, एसिड इनसोल्यूबल में मिलता है। क्यों इनसोल्यूबल में मिलता है, बिकॉज लिपिड आपको पता है दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर के हैं, नॉन पोलर नेचर वाले हैं, इसीलिए वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल है। इसीलिए वो एसिड क्या है, इट इज हैविंग द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, उसमें सोल्यूबल हो सकते हैं। लेकिन लिपिड तो नॉन पोलर है तो वो एसिड में सोल्यूबल नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट भले ही उसका कम है 800, फिर भी वो नीचे नहीं जाएगा। दिस इज द रीजन लिपिड दे आर, दैट इज कॉल्ड द
Micromolecules still they are present in acid insoluble pool, or still you can find them into residues. Which micromolecule you don't find in acid soluble pool or filtrate or supernatant? That is called the lipid. यहां आपका क्वेश्चन रहता है. Now we will see filtrate या मेटाबोलाइट्स देखते हैं. अब हम लोग देखते हैं मेटाबोलाइट्स. So what are the primary and secondary metabolites? Primary and secondary metabolites. ये भी पूछते हैं बहुत बार. So what are the primary and secondary metabolites? इसके पहले हमारा acid soluble और acid insoluble हो गया. What is meant by primary metabolites and what is meant by secondary metabolites? ये और एक terminology. Primary metabolites, those metabolites with identifiable function. ऐसे मेटाबोलाइट जिनके फंक्शन हमें पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ओके, इसका मतलब दे प्ले अ नोन रोल. हमें उनका रोल पता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट. कहां पर इनका रोल? इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. लिविंग बीइंग में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, वहां पर जो मेटाबोलाइट जिनके फंक्शन हमें पता है, जिनके रोल हमें पता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट. राइट. सो ये हो गया आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट. फॉर एग्जांपल, आपको अमीनो एसिड का रोल पता है, आपको शुगर का फंक्शन पता है, क्या काम करता है, कैसे आता. बट सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट है, फंक्शन जो है उनकी इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड. ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट के हमें फंक्शन और रोल पता नहीं, या हमें उनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रोल पता है. फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल आपको याद रखने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के. जैसे मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन है, कोडेन है. ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसको अल्कलॉइड बोलते हैं हम लोग, अल्कलॉइड में आते हैं ये. मॉर्फिन हो गया, कोडेन, इनका हमें एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है. हम इसको यूज करते हैं, बट किस लिए ये फॉर्म हुआ, इसका फंक्शन क्या, इसका रोल क्या, ये हमें पता नहीं रहता. राइट. इसके यूजेस हमें पता है. कुछ पिगमेंट होती है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट का आपको पता है, ओके, फॉर फोटोसिंथेसिस है. लेकिन एक एंथोसाइनिन पिगमेंट है, अभी यूज हमें पता है, लेकिन किस लिए फॉर्म हुआ उस प्लांट में. कैरोटीनॉइड, किस लिए फॉर्म हुआ उस पर्टिकुलर प्लांट में ये पिगमेंट. We don't know the role. Okay, in case of your which one, that is called the secondary metabolite. बहुत सारे ऐसे जैसे टर्पिनॉइड्स है, we don't know इनका रोल क्या है. राइट. कुछ टॉक्सिन है, राइट, that is called रायसिन टॉक्सिन है. राइट. So this we don't know कुछ what's exactly their role is. रबर फॉर्म होता है कुछ प्लांट में, सेलुलोज टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. राइट. गम, वी डोंट नो द रोल, उनके यूजेस हमें पता है. राइट. यूजेस वी नो. जैसे एक रायसिन करके टॉक्सिन है, ये फॉर्म होता है, बट वी कैन यूज दिस, बट वी डोंट नो द रोल. देयर इज वन ड्रग, मेडिसिन, जिसको हम लोग विनब्लास्टिन बोलते हैं. विनब्लास्टिन, ये कीमोथेरेपी, कैंसर में ड्रग यूज किया जाता है. विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन. राइट. क्यूरक्यूमिन, ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये फॉर्म होते, हम इसको ड्रग करके यूज भी करते, बट हमें ये नहीं पता कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या है उस पर्टिकुलर जहां उनका सोर्स है करके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स.